मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you. Now I will tell you that what is our next year annual functions plan. We will not repeat program which we are doing now. We will do more good program, and we will give you more entertainment, and it will be our last program. So we will make it memorable program. Okay, thank you. My dear friends, today I am going to speak some lines about our next annual function, which will be held on 2016. We will celebrate good type of annual function in next year, and we will not repeat it again and again. And in this year, our school will complete. Next year, our school will complete 40th year, and we will do different type of annual function which we had not done in previous day. Thank you. Respected our chief guest, parents, teachers and my all friends. First of all, I would like to introduce myself. I am Dharmen from Dani Public School, Khuti, and I am reading in 9th class, and I am a senior student of this school. New session, new hope. As we know, our school has placed a milestone in the field of education. In the preparation for this annual function, we try to give our 100%. But I assure you for next annual function, we will definitely give our 100%. And I will be very sad because next function will be my last annual function. So we will do variety of programs, and I promise you next year we will celebrate a huge function on a huge scale, and also I promise you next year we will see a perfect school. Thank you. इस स्थापना दिवस को हमारे साथ मनाया, तो चलिए अब मैं और निवेदिता मन से विदा लेते हैं, और अंत में हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर को माइक थमाते हैं। हो गई, लेकिन इस बार अच्छा कार्यक्रम था। बहुत दिनों से हमने इसे मेहनत करके तैयार किया था। थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप काइंडली वेट करेंगे, क्योंकि बहुत देरी तक आपने वेट किया है, बहुत सब्र बांधा है। मैं डिबेट में जितने बच्चे भाग ले रहे हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। जितने बच्चे डिबेट में हैं, काइंडली प्लीज कम ऑन आवर स्टेज। Good afternoon, all of you. Now we are going to prove that modern life is better than earlier life. Good afternoon to all of you. We came here to prove that earlier life is better than modern life. When science and technology make our life more comfortable. Yes, my friend, I agree with you this statement. But you should not forget that although scientists make our lives more comfortable, but on other hand, we become too lazy to do any work with on hand. In earlier days, people used to travel 10 to 15 kilometers by barefoot or cycle, which keep their body more healthy. Okay, but you should not forget that in modern life, it becomes possible to cure various fatal diseases like TB, cancer, etc., which were impossible in earlier days. Yes, my friend, you are quite correct. But don't forget that these diseases occur due to change in earlier life. You see, in
earlier life, people hardly heard such type of diseases, and now, due to pollution, such type of diseases are increasing day to day. My friend, you have forget that in this modern life, we can travel long distance within a few days or hours. But in earlier days, it was very difficult task, and it took several days to complete a long journey. Okay, but you are not noticing the harmful effects of transport. With the help of this transport, only our environment is getting polluted. The fuels which comes out from these vehicles are creating a lot of problem to all living creatures. In earlier days, although there are not much transport facilities, but we and all living creatures living a healthy life. In modern life, we have benches and desks to sit and study in the school. But in earlier days, the student used to sit in the ground and study. Yes, sister, I accept you this point. But you are forgetting that those students sit on the ground, but they paid more attention to their teachers, what they are teaching or what they are saying to their students. In modern life, we have good means of transport and communication system which were not present in earlier days. Yes, it is correct, but you are forgetting that to provide better means of transport and communication system. Nowadays, we are destroying our environment. People are cutting the trees in order to build road. They are also cleaning the forest, due to which our environment is completely changed compared to earlier days. But if you see in earlier days, our environment was fully covered with dense forest and green plants. In earlier days, maximum student used to go to school by walking on foot. But nowadays, student usually use bicycle, auto or school bus, which make student life more comfortable. Yes, you are correct that students are getting more facilities to go to school, but don't forget that maximum students are taking this advantage in a wrong way. You can easily notice that nowadays students used to show stunt while bicycle or while going to school or coming back from school. Sometimes they are losing their life also. My friend, you have not noticed that in this modern life, our government are giving us more stress to educate, and now people's eyes were opened that they are sending their children to school without comparing between boys and girls. But in earlier days, people don't want to give any education to their girls' child. Yes, I agree with your this statement that in modern life, girls not only go to school, but they are doing jobs also. You should not forget that in earlier days, the communication system was very poor. For example, if a person want to invite, wish or want something from other person who is living in distant place or any other city, then the only option was to sending letter, which was time taking as well as there was no guarantee about that letter. But today there are lot of ways to contact any person anywhere and anytime, like mobile phone, emails, etc. Yes, sister, you are right, but we should not forget that everything has a certain limit. If we will do our work inside the limit, then only we can say that modern life is better than earlier life. आ जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ भी अगर है, कुमारी रूपन देव, तो वो भी जल्दी से आने का प्रयास करेंगे। दी नहीं जाती है, जिम्मेवारी ली जाती है, जिम्मेवारी को लेना पड़ता है, आगे बढ़कर पकड़ना पड़ता है। 2014-15 और हम चाहेंगे कि अगले साल भी आप लोग प्राइज लीजिए, क्योंकि अगर आपको अगले साल बेस्ट टीचर का प्राइज नहीं मिलता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं आप में कमी है। आपको ये चैलेंज है कि आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड आप दोनों को लेना है, ये आपके लिए चैलेंज है। और अगर आप नहीं लेते हैं तो आप में कमजोरी है, आपको अभी और सीखना पड़ेगा। तो अगले साल आपको विनर होना चाहिए। तो बाएं से बाएं से निवेदिता मैडम, और उसके बाद पुष्पांजलि इस साल की 2014-15 की बेस्ट टीचर, क्लास 6, 7, 8 में साइंस पढ़ाना हो, मैथ पढ़ाना हो और बाकी कुछ कराना हो, डांस कराना हो। ये जो प्रोग्राम तैयार हुआ उसमें पुष्पांजलि और निवेदिता का बहुत बड़ा सहयोग है, तब जाकर हम अब कह सकते हैं कि 2015 का जो स्थापना दिवस है वो बेस्ट है, अभी तक का बेस्ट है। ये हम देखने के बाद कह सकते हैं। और उसके बाद चंदेश्वरी मैडम है, पिछले साल भी थी, यूकेजी की टीचर, और पूरे विश्वास के साथ आपके बच्चों को पढ़ा रही हैं। उसके बाद कविता मैडम है, क्लास 4 में, 3 में, 5 में मैथमेटिक्स और 5 में मोरल साइंस पढ़ाना। और उसके बाद चांदनी मैडम फिर से भारतीय टीम में शामिल कर ली गई हैं। और
6-7-8 में मैथमेटिक्स और 6-7 में संस्कृत। उसके बाद रामेश्वरी पिछले 6 साल से हमारे स्कूल में क्लास 4 की टीचर और सारा सब्जेक्ट पढ़ाना क्लास 4 में। सरिता क्लास 1 की टीचर, और आज फेलिसिता मैडम की कमी हमको बहुत महसूस हो रही है। कल शाम में उनका फोन आया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाई। फेलिसिता मैडम जो हमारे स्कूल में 1 साल तक कार्यरत थी, उनका फोन भी कल आया था और उन्होंने बधाई भी दिया था। और संध्या मैडम क्यों बैठी है पीछे, आप भी आइए। आप अभी भी इस स्कूल का हिस्सा है, भले आप लीव में हैं, छुट्टी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्कूल की हिस्सा नहीं है। यू आर द पार्ट ऑफ द स्कूल। और उसके बाद सरिता के बाद मीनाक्षी 2-3 महीने पहले हमारे स्कूल को ज्वाइन किया और बहुत तत्परता के साथ हमारे बच्चों को, मीनाक्षी अब थोड़ा आगे बढ़िए तब लोग जानेंगे कि मीनाक्षी मैडम कौन है। क्लास 1 की टीचर, ईवीएस जीके मेरे ख्याल से इंग्लिश पढ़ाना क्लास 1 और 2 में। उसके बाद नीलम मैडम एलकेजी बी की टीचर, शिक्षिका, बच्चों को राइम सिखाना, छोटा छोटा डांस जो आपने पहले और दूसरे स्थान, पहला और दूसरा प्रेजेंटेशन जो हमारा था 11 बजे, उसकी टीचर। उसके बाद हम बुलाएंगे हमारे 2 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। एक हमारी रूपन है जो कि 2003 से यहाँ पर कार्यरत है। सन 2003 से आज 13 साल इसको हो गया इस स्कूल में, और इसकी एक बच्ची पढ़ रही है और एक बच्ची पढ़ने वाली है। तो रूपन से हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। पिछले 13 वर्षों से हमारे स्कूल में, और हम चाहेंगे कि आप 130 साल तक हमारे स्कूल को सेवा देते रहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सोमारी को आगे बढ़ाएंगे। वो पिछले 5 वर्षों से, 5.5 वर्षों से हमारे स्कूल में कार्यरत है, और हम चाहेंगे कि आने वाले 550 वर्षों तक आप हमारे स्कूल को सेवा दीजिए और आपका स्कूल इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। फिर बुलाएंगे एमलिन मैडम को, जो कि अभी हाल में ही 4-5 महीने पहले आपके स्कूल में आई हैं और यूकेजी के टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। इसके बाद ज्योति को, अभी ज्योति को प्राइज भी मिला है। पिछले 13 साल से, सन 2002 से आपके स्कूल में कार्यरत हैं और बरसात के दिनों में नदी को पार करके आकर आपके बच्चों को पढ़ाती हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शोभा मैडम पता नहीं कहाँ है, शायद घर के तरफ गई है कुछ लाने के लिए। तो शोभा मैडम दौड़ कर आएंगे कि मेरा नाम सर बुला रहे हैं, अभी दौड़े दौड़े आ जाएंगे। तो उसके बाद हम अलका को आगे बढ़ाएंगे। अलका आप आगे बढ़िए। आपको बहुत सारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अलका बीएड की तैयारी करने के लिए बाहर गई हैं, और फिर जैसे उनका बीएड कंप्लीट हो जाएगा फिर से वो आपके स्कूल को ज्वाइन कर लेंगी। ये लोग सब हमारे स्कूल का हिस्सा हैं, और मैंने आपको कहा था कि आप माइक पकड़कर स्टेज में जाइए, पता नहीं आपने मेरी बात नहीं समझी, लेकिन कोई बात नहीं है। 2016 में हम चाहेंगे कि आप स्टेज पर रहिए। उसके बाद संध्या मैडम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले करीब 1 साल से हमारे स्कूल में कार्यरत हैं। बीच में ये लीव लेकर, छुट्टी लेकर, 2-3 महीने की छुट्टी लेकर कुछ काम से ये घर पर हैं। आने वाले सेशन में ये हमको ज्वाइन करेंगी। संध्या मैडम आप आगे बढ़े थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे महेंद्र जी को। बच्चों को बहुत ढंग से पढ़ाना, आपने जो वही रही जो एमपी सर का नाटक देखा वो महेंद्र जी ने तैयार कराया। जो व्यंग समाचार आपने सुना, हाथ से कम व्यंग समाचार, उसमें महेंद्र जी ने उसमें बहुत सारा कोटेशन डाला था, उसमें मैंने भी मदद की थी, आपके सुनील सर ने भी मदद की थी। तो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना और अपना 100% देना, ये इनकी प्रतिभा पर 4 चांद लगाता है। तो महेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार पढ़ाइए और स्कूल को आगे बढ़ाइए। फिर हम आगे बढ़ाएंगे सुमित जी को। मतलब इनके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पिछले 7 महीनों में सुमित जी ने जो दिया है वो काबिले तारीफ है। जो विला फॉर सेल का जो ड्रामा था, जब मैंने दिसंबर में इसका रिहर्सल देखा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द ड्रामा। हमको विश्वास नहीं हुआ कि ये पढ़ने वाले बच्चे कैसे इतनी फ्लुएंसी के साथ, इतने धारा प्रवाह के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं। जिस दिन हम ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल गए थे अजय जी के यहाँ, हमको जाने में इसी कारण से देर हुई थी कि वही बिला फॉर सेल का हम रिहर्सल देख रहे थे, और हमको विश्वास नहीं हुआ कि कैसे बच्चे इतना अच्छा करते हैं, और इसी कारण से अजय जी हमको थोड़ी सी देर हुई थी। तो
तो सुमित जी आश्चर्यजनक रूप से सामने आए हैं और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आप हमेशा सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़िए। अगर आपका सोच पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव हो जाएगा और हमेशा आगे जाइएगा। आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर विनय जी को आगे बढ़ाएंगे और जब भी वाइस प्रिंसिपल का नाम होता है तो हम लोग विनय जी का नाम लेते हैं और आज भी हमने उनका नाम लिया वाइस प्रिंसिपल के तौर पर। और अब बहुत देर हो गई है और हम सभी लोगों के सामने ये विनय जी से कहना चाहेंगे कि विनय जी, स्कूल की आपको बहुत जरूरत है, आप वापस आ जाइए। एक बार आप दिल्ली गए थे, मेरे कहने पर आप वापस आ गए थे। आज हम सब बच्चों के सामने, इतने बच्चों के सामने हम कह रहे हैं, बच्चों का रिक्वेस्ट भी था कि सर विनय सर को वापस बुला लीजिए। तो मेरा ये निवेदन है